एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदा फ्रॉम बहरीन। और हम डिस्कस कर रहे थे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे। इससे पहले मैं और बहुत सारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी हम मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हाउएवर द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट बी इंडिविजुअलाइज एंड डिपेंड मोर on clinical presentation. Acute principle is the management of acute is resuscitation laparotomy and not resuscitation followed by the laparotomy. Anti shock treatment दिया जाएगा पहले with simultaneous preparation for urgent laparotomy. ठीक है. Ringer solution crystallite is started if necessary with venesection. अरेंजमेंट इज मेड फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। साथ ही साथ आप ब्लड के ट्रांसफ्यूजन का अरेंजमेंट करेंगे। इवन इफ द ब्लड इज नॉट अवेलेबल, लेप्रोटोमी इज टू बी डन desperately. ठीक है. when the blood is available it is better to be transfused after the clamp are placed to occlude the bleeding vessels on laparotomy, as it is of little help to transfuse with the vessels are open. After drawing the blood sample for grouping and cross matching, volume replacement with colloid is to be done. ठीक है. पहले उसके बाद उसको ग्रुपिंग के लिए, क्रॉस मैचिंग के लिए भेज देंगे आप. लेप्रोटोमी इंडिकेशन क्या क्या होंगी? पेशेंट हिमोडायनामिकली अनस्टेबल होगा, लेप्रोस्कोपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, एविडेंस ऑफ रप्चर्स मिलेंगे. द प्रिंसिपल ऑफ इन लेप्रोटोमी इज क्विक इन क्विक आउट. ओके. स्टेप्स क्या होंगे इसके अंदर? एब्डोमेन इज ओपन बाय द इंफ्रा अब्लाइकल longitudinal incision to grasp the uterus and draw it up under vision. The tubes and ovaries, both the sides are quickly inspected to find out offending site. ठीक है. ठीक है. फिर सेल्फ इंजेक्टोमी की जाएगी. इस definitive surgery and the excised tube should be sent for the histological examination भेज देंगे. And the ipsilateral ovary and its vascular supply is preserved. Oophorectomy is done only if the ovary is damaged beyond salvage or is of pathological. ठीक है. Place of subtotal hysterectomy, the interstitial pregnancy, the rupture rent is so big and the general condition is so low so that most often the quick subtotal hysterectomy is done. However, if the condition permit and the uterine conservation is desirable, resection of the uterus may be attempted. फिर उसके बाद ट्रांसफ्यूजन इन रूटीन. Its routine use is not advocated because of its adverse reaction. In case where donated blood is not available, the fresh blood from the peritoneal cavity may be collected for auto transfusion, and the collection is done throughout strainer consisting of 4 to 5 layers of sterilized gauze piece in a bottle containing citrate solution 3.8% in the proportion of 5 part of the blood to 1 part of the citrate solution. Chronic ectopic में क्या है? All cases of chronic or suspected ectopic are to be admitted, ठीक है, as an emergency के तौर पे. The patient is kept under observation, investigation are done and the patient is put up for laparotomy at the earliest convenient time. Usually a pelvic hematocele is found, blood colloids को remove करेंगे and the affected tube is identified and self-injectomy is commonly done as described previously. Resumption of ovulation and contraception. About 15% of the women ovulate by 19 days and about 25% ovulate by 30 post-operative day. Contraception should ideally be recommended at the time of hospital discharge. अभी हमने बात करी रप्चर्ड प्रेगनेंसी की, और अगर अनरप्चर्ड ट्यूबर प्रेगनेंसी है तो मैनेजमेंट एक्सपेक्टेंट, कंजर्वेटिव और सेल्फ इंजेक्टमी. तो सबसे पहले एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्या होता है? व्हेन वेयर ओनली ऑब्जर्वेशन इज डन, जहाँ पे सिर्फ आपने ऑब्जर्वेशन करनी है. होपिंग स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन. इंडिकेशन क्या क्या है? आर फॉलिंग एससीजी टाइटर, एक्टोपिक मास लेस देन 4 सेंटीमीटर, नो एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग और रप्चर, देर इज स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन इन 2/3 ऑफ अर्ली केसेस. ठीक है. कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में भी मेडिकल और सर्जिकल, अदरवाइज सेल्फ इंजेक्टोमी की जाएंगे. एडवांटेज कंजर्वेटिव की क्या है? सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ऑपरेटिव मोबिडिटी, हॉस्पिटल stays of hospital stay as well as cost, improved chances of subsequent intrauterine pregnancy and less risk of recurrence. Medical management में क्या है? Number of chemotherapeutic agent have been used either systemic or direct, local, under sonographic or laparoscopic guidance as medical management of ectopic pregnancy. Drugs जो इस्तेमाल की जाती है वो
सल्पिंजोसेंटेसिस आर मेथोट्रेक्सेट इस्तेमाल की जाती है, पोटेशियम क्लोराइड इस्तेमाल की जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन, हाइपरऑस्मोलर ग्लूकोज एंड एक्टिनोमाइसिन. द पेशेंट मस्ट बी हेमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए. ट्यूबल डायमीटर शुड बी लेस देन 4 cm विदाउट एनी फीटल कार्डियक एक्टिविटी. There should be no intra-abdominal hemorrhage. For systemic therapy, a single dose of methotrexate 50 mg is given intramuscularly. Monitoring is done by measuring beta HCG on D4 and D7. ठीक है. When the decline in the HCG between D4 and D7 is less than 15%, the patient is followed up weekly with the serum HCG until जब तक के less than 10 मिली इंटरनेशनल मिलीलीटर्स ना हो जाए. ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर ना हो जाए. इफ द डिक्लाइन इज लेस देन 15% ऑफ सेकेंड डोज, तो उसमें कितना देंगे, मेथोट्रेक्सेट 15 mg देंगे 7 डे पे. ठीक है, वेरिएबल डोज मेथोट्रेक्सेट की इतनी है जो यहाँ दे रखी है. ठीक है, कंजर्वेटिव सर्जरी प्रोसीजर कैन बी डन आइदर लेप्रोस्कोपिकली और बाय द माइक्रो सर्जिकल लेप्रोटोमी. फिर इसके बाद इसके अंदर लीनियर सेल्पिंजोस्टोमी है, लीनियर सेल्पिंजोस्टोमी है. ठीक है, सेगमेंटल स्ट्रक्चर है, प्लकिंग आउट फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल है. एंड सेल्पिंजेक्टोमी इज डन व्हेन होल ऑफ द ट्यूब इज डैमेज. जब करेंगे सेल्पिंजेक्टोमी, जब पूरी ही ट्यूब डैमेज हो जाएगी. ठीक है. फॉलोइंग कंजर्वेटिव सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट, एस्टिमेशन करेंगे बीटा एचसीजी की, शुड बी डन वीकली टिल द वैल्यू, जब तक कि उसकी वैल्यू लेस देन 5 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर नहीं आती. एडिशनल मॉनिटरिंग करेंगे बाय द TVS and following laparoscopic salpingostomy. Persistent ectopic pregnancy ranges between 3 to 20%. Persistent ectopic pregnancy is due to incomplete removal of trophoblast. Prophylactic single dose of Montus and 1 mg per kg intramuscularly is effective for the to resolve the problem. ठीक है. Methotrexate RH नेगेटिव वुमेन है तो नॉट येट सेंसिटाइज टू RH एंटीजन एंड एंटी डी गामा ग्लोबुलिन 50 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली शुड बी एडमिनिस्टर्ड सून फॉलोइंग ऑपरेशन टू प्रिवेंट आइसोइम्यूनाइजेशन के लिए. प्रोग्नोसिस, immediate prognosis so far as maternal mortality is concerned has been markedly reduced due to early diagnosis, adequate blood replacement and surgery. Even desperately ill patient, but often an avoidable death from the ectopic has been found due to attempts of resuscitation prior to operation. So far as late prognosis is concerned, it has been found gloomily an ectopic mother has got ever chance of viable birth in 1 in 3 and a chance of recurrence of ectopic in 1 in 10. Patient is asked to report after she misses her period to confirm and locate new pregnancy. Prevention क्या है, ट्यूबल प्रेगनेंसी के प्रिकॉशन ड्यूरिंग प्राइमरी सर्जरी, रिमूवल ऑफ द ब्लड क्लॉथ एज फार एज practicable, squeezing out of the blood from the contralateral tube, removing ipsilateral ovary, bilateral salpingectomy in ectopic pregnancy following tubal स्टेलाइजेशन. अब एक ड्रामेटिकली देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, पहले डिटेल हिस्ट्री लेंगे, इवेलुएट करेंगे हाई रिस्क फैक्टर को, एग्जामिनेशन को, बीटा एचसीजी ठीक है कराएंगे और अल्ट्रासाउंड कराएंगे. ठीक है, बाय एक्टोपिक माइंडेड बी एक्टोपिक माइंडेड कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे. बीटा एचसीजी अगर नेगेटिव है तो रिपीट कराएंगे एक हफ्ते बाद फिर से. अगर नेगेटिव आएगा तो प्रेगनेंसी हो गई एक्सक्लूड. ठीक है, अगर जो क्लिनिकल फीचर्स हैं और बीटा एचसीजी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे आप. उसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी जोन ऑफ बीटा एचसीजी ऑन TVS जो आएगी इजिकल टू 1500 जैसे अभी बताया था. तो उसमें क्या करेंगे आप, इंट्रायूट्राइन सेक देखेंगे और एम्प्टी यूट्राइन कैविटी विद एडिनेक्सल मास. अगर इंट्रायूट्राइन सेक में डिटरमाइन कर रही है वेरिएबिलिटी तो बीटा एचसीजी ग्रेटर देन 60 in 48 hours and progesterone is greater than 25 nanogram and USG. ठीक है, उसके बाद अगर एम्प्टी है यूट्राइन कैविटी एंड विद एडिनेक्सल मास तो लेप्रोस्कोपी करेंगे. अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी तो एक्सपेक्टेंट उसका ट्रीटमेंट अभी बताया मैंने. मेडिकल क्या है, सर्जरी क्या है एक्सपेक्टेंट में. फॉलिंग एचसीजी हाई टाइटर, एक्टोपिक मास डायमीटर अगर लेस देन है 4 सेंटीमीटर से एंड कोई एविडेंस नहीं है ब्लीडिंग का तो आपने सिर्फ एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करना है. फिर उसके बाद फॉलो अप करेंगे फॉर अप टू डिसेक्ट प्रेसिस्टेंट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ओके,
फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में डायरेक्ट देंगे, सिस्टमिक देंगे, डायरेक्ट में लेप्रोस्कोपी और यूएसजी गाइडेड करेंगे। इसमें क्या है, MTX देंगे, पोस्ट क्लोराइड देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे, हाइपरऑस्मोलर ग्लूकोज देंगे, उसके बाद फॉलोअप पे रखेंगे। सिस्टेमिक के अंदर एक्टिनोमाइसिन देंगे। उसके बाद सर्जिकली में क्या है, लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटोमी है, कंजर्वेटिव और एक्सट्रिप्टेटिव है। कंजर्वेटिव के अंदर भी प्लकिंग आउट है, जिसे बताया था, सेल्फिंजेक्टोमी है, सेल्फिंगोस्टोमी है, और उसके बाद सेगमेंटल रिसेक्शन है, फिर उसके बाद फॉलोअप। ठीक है, और इसके अंदर भी सेल्फिंजेक्टोमी है। ठीक है, और ये जो है मेथोट्रेक्सेट और प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए निमोनिक्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो ऊपर बताए गए हैं। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।